Hello everyone, I am Dipti Gupta. Today I will explain Chapter 4 PowerPoint. Introduction. Microsoft PowerPoint 2007 helps to develop dynamic, easy to create professional presentation. Microsoft PowerPoint 2007 ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का ही एक पार्ट है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के और भी पार्ट है, जैसे कि MS वर्ड है, MS एक्सेस है, MS एक्सेल है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2007 भी एक MS ऑफिस सूट का ही पार्ट है। ये हमें एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए काम में आता है, जो कि जिस प्रेजेंटेशन को यूज़ करते हैं, कुछ टीचर्स यूज़ करते हैं, ट्रेनर्स यूज़ करते हैं अपने लेक्चर्स को प्रेजेंट करने के लिए। ऐसा नहीं कि खाली टीचर्स और ट्रेनर्स के लिए ही यूज़ में आता है। ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स होते हैं, ऑफिसेस होते हैं, उन्हें अपने प्रोजेक्ट प्लान्स के बारे में एक्सप्लेन करना हो, अपनी स्ट्रेटजी है उसके बारे में उन्हें प्रेजेंट करना हो, तो देन कॉर्पोरेट सेक्टर्स में भी ये यूज़ में आता है। अगर हमें अपनी प्रेजेंटेशन कुछ अट्रैक्टिव बनानी है तो हमें पिक्चर्स का यूज़ करना होगा, साउंड्स का यूज़ करना होगा, इफ़ेक्ट्स एंड टेबल एंड चार्ट्स का यूज़ करके हम अपनी प्रेजेंटेशन को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब हम इस चैप्टर में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन फीचर ऑफ पावर पॉइंट, कैसे हम प्रेजेंटेशन को क्रिएट करते हैं, जनरेट कैसे करते हैं स्लाइड्स को, प्रेजेंटेशन में टेक्स्ट को ऐड कैसे करते हैं, पिक्चर्स को, शेप्स एंड स्लाइड्स को ऐड कैसे करते हैं, कितने तरीके के व्यूज़ होते हैं, स्लाइड शो कैसे यूज़ में लेते हैं एंड प्रेजेंटेशन को सेव कैसे करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का स्टार्टिंग पावर पॉइंट। अब हम पावर पॉइंट को स्टार्ट कैसे करते हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगी कि स्टार्ट पावर पॉइंट को कैसे किया जाता है। फर्स्ट आई हैव टू गो माइक्रो स्टार्ट बटन एंड देन ऑल प्रोग्राम्स एंड देन सर्च माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस and then search Microsoft Office, click on it and then click on Microsoft PowerPoint. Microsoft Office is a suite and these are the parts of the Microsoft Office. I have to click Microsoft PowerPoint 2010. Like this we can create a PowerPoint presentation. Next, these are the steps how to start a PowerPoint presentation. Like this, all programs, Microsoft Office and then Microsoft Office PowerPoint 2007. अब नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग अ प्रेजेंटेशन। अब अपनी कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करनी हो देन कैसे क्रिएट करेंगे। वी हैव टू गो क्लिक ऑन फाइल ऑप्शन and then click new blank presentation. If you want to choose any template then you can choose any template from my templates and then create. This is your new presentation. If you want to open an existing presentation then click open this is taking a waiting time and choose from where your presentation is exist. If my presentation is exist in any folder like desktop, like this, we can open this presentation, my existing presentation from open. Creating a presentation, select new, open an existing presentation. How we can open an existing presentation? Select office button then open, that I already explained you in practical. Viewing slides. अब हम स्लाइड्स को हम कितने तरीके से देख सकते हैं।
view, normal view. This is your normal view. This is slide shorter view. In slide shorter view, all the slides are come in short way, in a one page. Note page view. If you want to add any note, then you can add any note here. And this is reading view. You can only read from there. There is a four type of view: normal view, slide shorter view, note page view, and reading view. Come on our book. This is a normal view, slide shorter view like this, note page view, and slideshow view. Working with slides. Next is the adding a slide. Then how we can add a new slide in our presentation? Go to the presentation and we can add a new slide from click on new slide, or we can press Ctrl+M, or otherwise we can right click on any slide like this and select new slide. We can select a new slide, adding a new slide, home, new slide, changing slide layout. Next is the changing slide layout. How we can change a slide layout? There is a layout option. Click on it, and there is a many layouts you can choose from them, like title and contain. If you want to choose comparison, then you can choose this and add in your presentation. Deleting a slide. If you want to delete any slide, then how we can delete? Click on the slide, right click on the slide, and then delete slide. The slide is deleted. Adding text. अब आपको text कैसे add करना है? You can type here any text that you want. Like I am typing introduction, and if you want to select any other slide, click on it and type here. This is a title. Enter. Email. Type here that you want. Now how we can insert text boxes? Go to the insert tab. First I am taking a blank slide. Go to the insert tab and there is a text box. I want to text box in this here. Then this is a text box. Here you can type anything that you want. Like I am typing typography, and I want this in center, and I want to like this, and I want to increase the size like this. How to move your text box? If you want to move this, then pick from there and then you can move anywhere. Like I want it here, then I move here. I want it here, then move here. Format text.
how we can format. If you want to change size, color and alignment of the text, then we can change it. Adding word art, how we can add word art. I'm taking a new slide and I want word art. We can select insert, click on insert and then select word art. There is a different type of word art. You can select any one of them and type your text here. Like this. If you want to increase the size, then you can increase it. If you want to change shape of this, like shadow, if you want to change the color of them, you can select from anywhere like this. Format word art, how we can format. If you want to change the color and the type and the like this. If you want to change this shape, then you can change the shape. Effects, shape outline, like this. Shape fill, adding shapes and image and word art, how we can add in your presentation. I'm taking a new slide and how we can, and I'm going in insert tab. Then from here you can choose shapes, and from here you can choose chart, and from here you can choose any image. If I want to take any image, and go to the picture and select any image like this, insert. If you want to resize it, then you can resize it. If you want any frame in that picture, then you can choose any frame from there, like this. This is a picture layout. This is a picture effect. If you want to shadow, then you can use this. If you want to reflection, then you can use this. Glow, soft edges, pebbles, 3D rotations, like this. Adding clip art, insert and then clip art. You can type which type of clip art you want. Here I am typing computer and then go. There is a lots of the clip art. You can choose from there. Like I want this. Then if I want to resize it, then you can resize it. If you want to rotate, then you can easily rotate it like this. Formatting an image and clip art, how we can format it. If you want to format it, there is a picture styles that I already told you. You can choose any frame from there, like this. I want this frame, choose it. Picture layout, like if you want to add any text here, then you can choose from there, like this. I want here computer.
If you want to change the shadow effect, like this. If you want to border, then you can choose any border. And if you want to change the weight of this border, this is thicker. Next, adding theme to slide. How we can add theme? Go to your slide, design, and then there is a lots of theme. You can choose any theme from there. Like I want this theme, then all the slides are converted in this theme. If you want to choose another theme, then you can choose another theme. Like this, I want this theme, then all the slides are in this theme. Next, changing the background. If you want to change the background of your slide, then background style, there is a lots of color, you can choose it. If you want to go format background, this is a solid fill, this is the gradient fill. And if you want to texture in your background, then select the texture. You can choose any texture and then apply to all. If you want to, then apply to all. This texture is applied in all slides. Now formatting presentation using Slide Master. Click on our slide, click on View, Slide Master. स्लाइड मास्टर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर मुझे सारी स्लाइड्स में एक ही जैसा कोई लोगो चाहिए, जैसे कि मेरा कंपनी का कोई लोगो है, मुझे वो सारी स्लाइड्स पर शो होना चाहिए यहाँ पर, तो मैं एक तरीका तो ये कि मैं हर स्लाइड पर जाऊँगी एंड देन क्लिप आर्ट में से या फिर इमेज में से उस लोगो को सिलेक्ट करूँगी, या फिर मैं एक ही बार में वो स्लाइड्स में चेंजेस कर दूँ और वही चेंजेस सारी स्लाइड्स में शो हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, व्यू पर क्लिक कराएं, स्लाइड मास्टर पर क्लिक कराएं एंड देन इंसर्ट पर जो भी मुझे लोगो चाहिए, जैसे कंपनी का लोगो चाहिए, इंसर्ट। अगर क्लिप आर्ट में है तो आप क्लिप आर्ट में से लो, या फिर पिक्चर्स में से है तो पिक्चर्स में से लो। मैं क्लिप आर्ट में से कोई भी लोगो चूज़ कर रही हूँ, लाइक मैं यही लोगो चूज़ कर रही हूँ और मुझे ये लोगो यहाँ पर चाहिए हर पेज पर। इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर देती हूँ। थोड़ी सी शेप चेंज कर देती हूँ लाइक दिस। अगर मुझे इसका बैकग्राउंड चेंज करना है जो कि हर पेज पर चाहिए, तो बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको चेंजेस चाहिए हर पेज पर, तो वो आप सारे चेंजेस करके इसी मास्टर पेज पर चेंज करके आप वही सारे चेंजेस हर सारी स्लाइड्स में देख सकते हैं। सेव करूँगी इस प्रोजेक्ट को एंड देन क्लोज मास्टर व्यू। देखिए ये मेरा फर्स्ट पेज है, यहाँ पर ये लोगो शो हो रहा है। नेक्स्ट पेज है, ये देखिए लोगो शो हो रहा है। नेक्स्ट पेज है, ये लोगो, यहाँ हर पेज पर ऑटोमेटिकली वही लोगो अपने आप आ गया। अब ऐसे ही मेरी 5 स्लाइड्स हैं, अगर मेरी करीब 100 और ज़्यादा भी स्लाइड्स हों तो उन सब पे ऑटोमेटिकली ये सारे लोगो यहाँ शो हो जाएंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि आप जो लेआउट चूज़ कर रहे हो वो सबका सेम होना चाहिए। नेक्स्ट है एनिमेशन। आप एनिमेशंस का कैसे यूज़ में ले सकते हैं, आप अपनी स्लाइड्स पर जाएंगे, एनिमेशंस पर क्लिक करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट, इमेज, जो भी टेक्स्ट है आपको सेलेक्ट करना है आप उस पर सेलेक्ट करेंगे। देन ये अलग अलग तरीके के एनिमेशंस हैं,
आप इनमें से जो चाहते हैं चूज़ कर लें। लाइक जैसे मैं ये चूज़ कर रही हूँ, ये इस टाइप से शो होगा। अगर मैंने वाइप चूज़ में लिया तो इमेज इस तरीके से प्रेजेंट होगी आपके सामने। व्हील चूज़ में लिया इस तरीके से। अलग अलग तरीके के एनिमेशंस हैं। आप एनिमेशंस ग्रो एंड श्रिंक करना चाहते हैं तो ग्रो होगा, देन श्रिंक होगा। ट्रांजिशंस है, आप ट्रांजिशंस यूज़ में लेना चाहते हैं तो देन ये पूरे पेज पर ट्रांजिशन होगा। बट ध्यान में रखना है कि एनिमेशन और ट्रांजिशन बैकग्राउंड के लिए नहीं होते हैं, ये पूरे पेज के लिए होगा। लाइक मैं इसमें अदर किसी पेज में चेंज करना चाहती हूँ, रैंडम बार सेलेक्ट कर लिया। इनमें भी कई तरीके के हैं। डायनेमिक कंटेंट है, आपको जो चूज़ में लेना है आप इनमें से चूज़ में ले सकते हैं। ये इफेक्ट्स हैं आपके, ये जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाए थे, ये सारे एनिमेशंस एंड ट्रांजिशंस हैं। नेक्स्ट है स्लाइड शो। अब आपको अपनी प्रेजेंटेशन देखनी है कि आपके सामने कैसे प्रेजेंट होगी। आप स्लाइड शो पर क्लिक करेंगे। अगर आप फ्रॉम बिगनिंग से चाहते हैं, फ्रॉम बिगनिंग मीन आपकी फर्स्ट स्लाइड से शो होगा। फ्रॉम करंट स्लाइड जिस पर आपका क्लिक है, जैसे ये फोर्थ वाली स्लाइड अभी क्लिक है तो यहाँ से आपका स्लाइड शो स्टार्ट होगा। अदरवाइज़ आप यहाँ से भी यूज़ में ले सकते हैं स्लाइड शो। अदरवाइज़ आप F5 की भी प्रेस कर सकते हैं तो आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ फ्रॉम बिगनिंग से। ये देखिए, ये मैंने एनिमेशन लगाया हुआ है। यहाँ पर एनिमेशन लगाया था, जिस जिस स्लाइड पर मैंने एनिमेशन लगाया था वो आपके सामने शो हो रहा है। नेक्स्ट है सेटअप स्लाइड शो। सेटअप स्लाइड शो 4 तरीके के इसमें ऑप्शंस हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रही हूँ। स्लाइड शो, सेटअप स्लाइड शो, ये देखिए ये सेटअप स्लाइड शो है। अगर आपको स्लाइड शो आपको किस पेज से करना है, अगर आपको सेकंड पेज से आपको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करनी है स्लाइड शो में तो आप यहाँ पे पेज नंबर टाइप करेंगे। जैसे 2 से लेके मुझे 5 तक करनी है तो आपकी फर्स्ट वाली जो स्लाइड है वो आपको स्लाइड शो में प्रेजेंट नहीं होगी, आपको 2 से ही होगी। आप चाहते हैं यहाँ लास्ट में भी चेंज करना तो 2 से लेके 4 तक चेंज कर सकते हैं, तो आपकी स्लाइड शो 2, 3, 4 ये सारी प्रेजेंट होगी। यह स्लाइड शो ऑप्शन लूप कंटिन्यूसली अंटिल एक्सेप्ट, जब तक कि आप एस्केप की प्रेस नहीं करते तब तक आपका स्लाइड शो चलता रहेगा। सेकंड है आपको शो विदाउट नरेशन। अगर आपको नरेशन आपको यूज़ में नहीं लेना है तो इसके विदाउट आपकी प्रेजेंटेशन आपके सामने प्रेजेंट होगी। शो विदाउट एनिमेशन, अगर आपको एनिमेशन किसी को प्रेजेंट नहीं करना है तो आप इस वाले पर टिक करके आप इसे यूज़ में ले सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पर 2 से लेके 4 तक प्रेजेंट करा है। शो विदाउट एनिमेशन, ओके। अब मैं स्लाइड शो करके देख रही हूँ। ये सेकंड पेज था। थर्ड पेज, नेक्स्ट है रिहर्सल टाइमिंग। रिहर्सल टाइमिंग आप कोई भी प्रेजेंटेशन को रिहर्सल यूज़ में लेने के लिए करते हैं कि आपका प्रेजेंटेशन कितना टाइम ले रहा है आपको प्रेजेंट करने के लिए, तो आप ये देखना चाहते हैं कि कितना वो टाइम ले रहा है, आप टाइम फ्रेम को देखना चाहते हैं, देन आप यूज़ में ले सकते हैं। आप स्लाइड्स पर जाएंगे, रिहर्सल टाइमिंग पर जाएंगे, देन आप अपनी यहाँ पर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब ये कितना टाइम ले रही है हर स्लाइड, ये पूछ रहा है कि टोटल आपकी जो पूरी स्लाइड की प्रेजेंटेशन है उसने 0.7 आपने टाइम लिया है। देन इफ़ यू वांट टू सेव दिस देन क्लिक ऑन यस। ये देखिए फर्स्ट स्लाइड तो चली नहीं थी क्योंकि हमने स्लाइड शो पर क्लिक करा था कि हमारी ये स्लाइड फर्स्ट एंड फिफ्थ शो ना 2 से लेकर 4 शो हो, तो सेकंड वाली स्लाइड ने 6 सेकंड टाइम लिया, इसने 1 एंड इसे 0। आपको प्रेजेंटेशन सेव कैसे करनी है, प्रेजेंटेशन सेव करने के लिए आप
कंट्रोल एस प्रेस कर सकते हैं, या फिर यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव का आइकन है, यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर सेव कर सकते हैं। सेव एज हम इसलिए यूज़ में लेते हैं, अगर हमारी फाइल ऑलरेडी सेव है तो हम सेव एज पर क्लिक करते हैं। जैसे मेरी फाइल है d.ppt, इस नाम से सेव है, तो मैं सेव एज पर क्लिक करूँगी। अब जिस भी नाम से मुझे सेव करनी है उस नाम से सेव करूँगी, और जहाँ पर मुझे सेव करनी है लोकेशन देखूँगी कि कहाँ पर मुझे अपनी फ़ाइल सेव करनी है। जैसे कि मुझे डेस्कटॉप पर सेव करनी है, डेस्कटॉप पर क्लिक करा, देन उसका नाम टाइप करा, देन क्लिक ऑन सेव। ये मेरी फ़ाइल सेव हो चुकी है। आपको अपनी प्रेजेंटेशन को अगर प्रिंट करना है, यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है, फाइल में जाके प्रिंट पर, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन आप, अगर आपका ये पास में प्रिंटर अटैच है तो आप इस पर क्लिक कर देंगे। कितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपको चाहिए, यहाँ पे 1 है। अगर आपको कॉपीज़ बढ़ानी है 2, 3, 4, जितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ चाहिए आप उस पर क्लिक करेंगे। देन अगर आपको सारी स्लाइड्स चाहिए तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और देन प्रिंट पर क्लिक कर देंगे। थैंक यू।